جو ہم سب کے پاس ہماری اپنی زبان میں موجود ہے، جس کو کہ ہم آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، اور ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ اور یہ زندہ کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج جو خدا کا کلام ہم تک پہنچ چکا ہے، اس کے بعد اور کوئی حصہ اس میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ ہمارے لیے ضروری تھا وہ اس زندہ کلام میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے سب کچھ اسی سے حاصل کرنا ہے۔ یہی زندہ کلام ہر وقت ہماری زندگی میں مددگار ہے۔ اس میں ہماری زندگی کے ضابطہ حیات کے لیے اور باقی ضرورتوں کے لیے ایک ایک چیز شامل ہے، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس زندہ کلام کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں، تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے زیادہ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو عزیزو، آج ہم اپنی مسیحی زندگی کا ایک اور حصہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، جس کا بہت سا عمل دخل ہماری زندگی میں ہے۔ تو آج کے پیغام کا عنوان جو ہے وہ ہے روپیہ پیسہ یا دولت یا مال دولت جو ہمارے پاس ہے۔ یہ ہماری زندگی میں اتنا ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائے کہ ہم اس کے ہی ہو کے رہ جائیں، ہمیں صرف اس کی فکر ہو اور اس کے لیے ہم سوچتے رہیں اور اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دیں۔ ایسا نہیں خدا چاہتا، بلکہ خدا نے تو اپنا زندہ کلام اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں دیا ہے۔ باقی چیزیں جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اس کی برکتوں کے وسیلہ سے ہیں، اس کی رحمتوں کے وسیلہ سے ہیں، اس کے فضل کے وسیلہ سے ہیں جو وہ ہم پر کرتا ہے۔ تو عزیز، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ یہ ہمارا ایک انسانی کام ہے، یہ انسانی فطرت ہے ہماری کہ ہم چاہیں کہ ہر وقت ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، دولت ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ہماری زندگی میں ضرورت بھی ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے پاس پیسے نہ ہو، ہماری زندگی کی دوڑ جو ہے وہ صحیح نہیں چل سکتی۔ لیکن ہر چیز کا ایک مناسب جگہ پر ایک حصہ ہے۔ جتنا حصہ خدا چاہتا ہے کہ اس مال دولت یا پیسے کا دخل ہماری زندگی میں موجود ہے، اتنا کا ہونا چاہیے کہ یہ ہم پر حاوی نہ ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ پیسہ جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھلے پیسے ہوں، ایسے کھلے پیسے ہوں، ہمارے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو، بہت سارے پیسے ہوں، ہم جیسے اپنی مرضی سے ان کو استعمال کریں اور کسی چیز کی کوئی ہمیں کمی نہ ہو۔ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہماری ضرورت بلکہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور
खुदा फिर भी एतदाल के साथ हमें सब कुछ मुहैया करता है। जितनी हमें ज़रूरत है खुदा हमें देता है, और वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन हम इंसान होते हुए क्या क्या चाहते हैं? ओहो, जो कुछ हम सोचते हैं मिनट में हमारे लिए सब कुछ हो जाए, और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पैसे हमारे पास खुले साथ हैं तो फिर हम सब कुछ, वो सारी चीज़ें मिनट में हाथ से भी कर लेते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे ही के बारे में सोचें, अपनी इस माल दौलत के बारे में सोचें, अपने इस ज़रूरत से बढ़कर इसके लिए सोचें। ऐसा हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, बल्कि ये माल दौलत जो है एक किस्म से खुदा की बरकत है, खुदा का फजल है, खुदा की देन है। इसको हासिल करने के लिए हम देखते हैं कि कुछ ज़राए जो हैं इस्तेमाल होते हैं। इस दौलत को हासिल करने के लिए कुछ ज़राए जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे बड़ा ज़रिया कई लोगों के लिए, ना उन्होंने मेहनत की ना उन्होंने कोशिश की, उनको वैसे ही मिल गए। ये कौन सा तरीका है? हम देखेंगे इंसाल की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 19 आयत। इंसाल का 19 बाब और उसकी 19 आयत। तो देखिए वहां पर वो कौन सा तरीका है। 19 बाब और उसकी 14 आयत। इंसाल 19 बाब और उसकी 14 आयत कि एक बनी बनाई चीज फौरन हमें कुछ कैसे मिल जाती है। वो क्या है? लिखा है, घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं। कई लोगों की मिरास इतनी ज्यादा उनको मिल जाती है, उन्होंने ना उसके लिए मेहनत की होती है, ना उसके लिए उन्होंने कुछ काम किया होता है। माँ बाप इतना उनके लिए छोड़ जाते हैं कि वो खुले तौर से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये माँ बाप की तरफ से मिरास के तौर पर कुछ मिल गया। उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की, उन्होंने कुछ कोशिश नहीं की, उसमें उन्होंने कोई हाथ नहीं हिलाया, कोई काम नहीं किया, बल्कि माँ बाप चले गए, वो अपने लिए बहुत सा पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ गए। तो उस वक्त क्या होता है? फिक्र ही नहीं होती, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। खुले पैसे मिल गए हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस जोड़ गए माँ बाप, और घर दे गए हैं और बहुत सारी चीज़ें दे गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब जिनको ये चीज़ें मिल गई हैं उनका क्या रवैया है। उन्होंने खुद और कुछ नहीं मेहनत करनी, कोशिश नहीं करनी, काम नहीं करना, बल्कि वो पैसे निकालते जाने और खुले इस्तेमाल करते जाने। और एक वक्त आता है कि वो वक्त तो सारा माल मेरा आपसे वो खत्म हो जाता है। फिर उनको समझ आती है, ओहो ये क्या हुआ, हम तो खाली हो गए, हमें तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। आदत तो उनको थी नहीं मेहनत करने की, ना उन्होंने कभी कुछ सोचा था। अब ये एकदम एक वक्त उन पर ऐसा आ गया कि अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल जो अक्लमंद हैं, जो दिनाए हैं, वो फिर भी इस वक्त से फायदा उठा लेते हैं। वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और हाथ पाँव मारते हैं और अपने लिए इतना कुछ हासिल कर लेते हैं कि वो अपना रोज की गाड़ी जो है वो आराम से चला सके। अब दूसरा तरीका जो इंसान जिसके वसीले से
कमाई हासिल करता है वो है खुद मेहनत करना, कोशिश करना, और उसको कहते हैं हलाल की कमाई। किसी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, क्योंकि मेहनत करके, कोशिश करके, हिम्मत करके, हौसला करके, खुद जान मारी करके पैसे कमाते हैं। खुदा ने भी इंसान को ये सजा दी कि अब जैसे तुझे पहले सब कुछ मुफ्त मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा। अब तू मेहनत करेगा, अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। और हम देखते हैं कि ये वो तरीका है जो मेहनत करके खून पसीने की कमाई जो है उससे अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करना है। और इसके बारे में बड़ी अच्छी बात हमें खुदा उनके कलाम में से मिलती है। यही मिसाल 28 बाब और उसकी 20 आयत में, इंसान 28 बाब और उसकी 20 आयत में वहां पर लिखा है 28 और 20 कि ध्यानदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। वो आदमी जो ध्यानदार है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, खुद अपने हाथों से काम कर रहा है और किसी दूसरे की तरफ नहीं देखता कि मुझे वहां से मिल जाए तो मैं अपना गुजर औकात करूं, लेकिन उसमें हिम्मत है, हौसला है। खुदा का भी यही फैसला है कि आदमी मेहनत करे, कोशिश करे, और जब वो ये सारे काम करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, अपना हाथ पांव हिलाता है, तो लिखा है कि खुदा भी इसे बरकतों से मामूर करता है। और वो ध्यानदारी से सारा काम कर रहा है, खुदावंद के हुजूर उसका डर खौफ रख के सारे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो खुदा उसकी इस मेहनत और कोशिश में जो ध्यानदारी से वो कर रहा है, खुदा से बड़ी बरकत से मामूल करेगा। खुदा उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। खुदा उसकी कोशिश को जो उसने की है उसको बेफायदा नहीं होने देगा, बल्कि उसको फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकता है। और इसके बाद आगे भी लिखा हुआ है, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करेगा वो बेसजा न छूटेगा। कई लोग कहते हैं मैं जब सुबह उठूं तो मेरे पास इतने पैसे आ जाए, और किसी को धोखा देकर, किसी के साथ प्रेम करके, किसी के साथ चक्कर चला के, और गैर या नाजायज तरीके से या खुदा की जो मर्जी के मुताबिक ना हो उस तरीके से बहुत कुछ हासिल कर ले। और वो हासिल करने में ये सब कुछ जल्दी करता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से जल्दी हासिल कर लूँ, और उसके लिए उसको नाजायज तरीका भी इख्तियार करना पड़ता है। तो ये बात गलत है। हमें खुदा हमारी मेहनत, कोशिश और हाथ पांव हिलाने की बरकत देता है, बरकत से मामूर कर देता है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देता है अगर हम कोशिश करें, उसकी मर्जी पर उसके साथ चलें। और ऐसा करने में हमारी अपनी बेहतरी है, ऐसा करने में हमारी अपनी बेहतरी है। तो हम देखते हैं कि पहला तरीका वो था कि हमें मिरास में कुछ मिल गया। दूसरा तरीका, हमने खुद मेहनत करके ध्यानदारी से और खुदा के हुजूर डर खौफ के साथ हाथ पांव हिलाकर खुद काम करके हमने कमाई की है, और वो हमारी कमाई हलाल की है, तो बरकतों वाली है। टाइम थोड़ा ही कमाएं, लेकिन उससे हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, क्योंकि खुदा वादा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत और कोशिश में तुम्हें बरकत दूंगा।
यही इंसाफ की किताब में से भी यही पता चलता है कि वो हमारी मेहनतें जो हैं उनको उससे हमें बरकतों से मामूर कर देगा। हमारी दयानतदारी से काम करने के वसीले से हमें सब कुछ मुहैया कर देगा। खुदा ये तो चाहता है कि हम उससे दुआ मांगते रहें, उससे बहुत कुछ मांगते रहें, लेकिन अपने लिए कुछ करना भी पड़ेगा, कुछ हाथ पांव हिलाना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ खून पसीने की कमाई हासिल करनी होगी। अगर ऐसा करेंगे तो वक्त नहीं होगा। अब तीसरा एक और दरिया है, एक और दरिया है तीसरा पैसा हासिल करने का, और वो है नाजायज तरीका, हराम की कमाई। वो हलाल की कमाई नहीं है, वो हराम की कमाई है। और इससे आदमी जो है वो उसको खुद भी जिम्मेदार होता है कई दफा, क्योंकि वो हमें हमारी बेहतरी के लिए होती है, बल्कि हमारी नुकसान के लिए होती है। अब जैसे एक आदमी है, उसका एक मुख्तार है, उसने अपने घर में एक मुख्तार मुकर्रर किया हुआ है कि तुझे मेरे सारे कामों को सारे अंजाम देना है, लोगों का लेना देना ये वो सब तेरे इख्तियार में, उन्हें सब कुछ सब चीज़ों को, घर के जितने माल दौलत है सारी का रिकॉर्ड भी तूने रखना है, हर चीज़ की तेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो अच्छा ईमानदार मुख्तार है वो अपने मालिक को हमेशा खुश रखेगा, इसलिए कि उसकी इस काम में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। लेकिन आम तौर से देखा जाता है कि जितने मुख्तार हैं वो ज़्यादातर अपने मालिक से बेईमानी करते हैं। उनकी जो मुख्तारी है वो बेईमानी वाली होती है, उनकी मुख्तारी जो है वो बेईमानी वाली होती है। लूका रसूल की इंजील उसका 16 बाब और उसके 1 से लेकर 9 आयत तक हम देखते हैं। लूका रसूल की इंजील उसका 16 बाब और 1 से 9 आयत तक कि एक मालिक था, उसका एक मुख्तार था, उसके सारे घर के सारे कामों को लेने वाला। तो लोगों ने उसको बताया कि ये तेरा मुख्तार जो है ये सही काम नहीं कर रहा, ये तेरा माल उड़ाता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है। मालिक फिक्रमंद हुआ, भाई ये क्या हुआ जो ये करता है। तो उसने अपने मुख्तार को बुलाया, भाई मैं चाहता हूँ कि तू ये काम छोड़ दे, मैं तुझे इस मुख्तारी पर नहीं रखता। तो फिक्रमंद हो गया कि अब क्या होगा, अब तो मेरे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी, मजदूरी मैं कर नहीं सकता, कभी काम किया ही नहीं, ये वाला मेहनत मजदूरी जो है मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूं। यार उसने अकल इस्तेमाल की, जितने उसके कर्जदार थे मालिक के, उसने उन सबको बुलाया, तो पूछा भाई तो तुम्हारे मालिक का क्या देना है। एक ने कहा कि मैंने इतने मन गेहूँ जो है वो देना है। क्या ठीक है, कागज ले जल्दी से और 100 मन की जगह 80 मन लिख दे। उन्हें मालिक को 80 देना है, और जो बाकी 20 है मैं 100 से तेरा छुटकारा करवा देता हूँ, लेकिन वो 20 तूने मुझे देने हैं। इस तरह उसने दूसरे से पूछा कि तेरा क्या आता है। उस कभी मेरा तेल इतना मैंने देना आपका मैंने बहुत किया है, ठीक है वो भी इतना लिख दे और बाकी कर। उसने सबको बुलाकर एक एक करके सब से कुछ ना कुछ उनको छोड़ा, और कुछ उसने अपने लिए बीच में से निकालने की कोशिश की। अब मालिक जो है जब उसको पता चला कि उसने मुख्तार ने ऐसे किया है, तो उसकी इस अक्लमंदी से हैरान भी हुआ। इसने अपने
फ्यूचर के लिए कैसे अपने कुछ बचाने के लिए सोच लिया है। बहरहाल हम देखते हैं कि जो बेईमानी मुख्तारी थी वो उसके लिए, इंसान के लिए जो है नुकसान का बायस होती है, उससे उसको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, वो एक कामयाब ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बेईमान है, उसका दिल जो है वो सफाई से काम नहीं करता। जो फ्रॉड से और फरेब से दौलत कमाते हैं वो भी दौलत उनके पास नहीं रहती, जैसे आई वैसे निकल गई। जैसे एक दौलत फ्रॉड से या फरेब से आई, वैसे ही आई तो वैसे ही निकल गई। तो हम देखते हैं क्योंकि वो सही तरीके से नहीं कमाएगी, वहाँ पर तरीका जो है कमाने का वो सही नहीं है, इसलिए खुदा उससे खुश नहीं होता। हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो लोगों का हक छीन लेते हैं, उनका हक मार लेते हैं और उनकी मजदूरी का जो हिस्सा आता है उनका हक का तो उनको देते नहीं। हम देखेंगे यकूब का खत तो 5 बाब और 4 आए। यकूब का खत का 5 बाब और 4 आयत में लिखा हुआ है, यकूब का खत 5 बाब और उसकी 4 आयत लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे और उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी है चलाती है। तुमने अपने मजदूरों के साथ ही धोखा किया, उनके साथ ही दगा किया, उनके साथ ही हेरा फेरी की और उनकी मजदूरी का हक जो उनको बनता है वो तुमने उनको दिया नहीं और उनके साथ हेरा फेरी की, उनके साथ फरेब किया, उनके साथ दगा किया, उनको धोखा दिया। और वो जो कुछ तुमने रखा है, जो कुछ रख जोड़ा है तुमने, वो तुम्हारे खिलाफ चिल्लाता है, तुम्हारे खिलाफ उसकी आवाज आती है कि इन्होंने लोगों का हक मारा है। वो मालिक है लेकिन फिर भी वो अपने मजदूरों के साथ ऐसे गलत काम करता है कि उनका हक जो है वो उनसे छीन लेता है, दगा करके रख लेता है। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उनकी मजदूरी जो तुमने दगा करके रख जोड़ी है चिल्लाती है और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल फ़ाद के कानों तक पहुंच गई है। ये ना समझें कि हमने आदमियों को धोखा दिया है, हमने आदमियों के साथ चक्कर चलाया है, बल्कि खुदा के साथ चक्कर चलाया है। तुमने खुदा को धोखा दिया है। इंसाफ तो उसने करना है, वो नहीं पसंद करता कि तुम अपने मजदूरों की हक जो है तुम छीन लो और दगा करके अपने लिए इस्तेमाल करो। तो जिदो ये तीसरा तरीका है जहाँ पर लोग हक छीन कर, दगा करके, फरेब करके, बेईमानी करके और इसके साथ ही लोगों के साथ एक और तरीका इख्तियार करके, वो कौन सा है कि लोग टैक्स जमा कराते हैं गवर्नमेंट के लिए। लोग जाते हैं टैक्स जमा कराने, तो वहाँ पर जो कैशियर है ना वो कहता है भाई पैसे तो आपने बहुत देने हैं, मैं तुम्हारा टैक्स थोड़ा सा कम करवा देता हूँ, मैं तुम्हारा टैक्स थोड़ा सा कम करवा देता हूँ, लेकिन तुम मुझे इतने पैसे बीच में से दो। वो क्या उसको तो मजे लग गए कि भाई मुझे अब टैक्स थोड़ा देना पड़ेगा, उसकी तो मौज हो गई। लेकिन जो वहां पर मौजूद था कैशियर, उसने जो काम किया वो फ्रॉड किया, धोखा किया, उसने लोगों से रिश्वत भी ली और गवर्नमेंट को भी धोखा दिया।
गवर्नमेंट को भी धोखा दिया कि वो पूरे पैसे टैक्स के अदा न करें। और ऐसे आदमी को हमारे कलाम की ज़ुबान में कहते हैं वसूल लेने वाले। उनका जिक्र कलाम में मौजूद है, कलाम में मौजूद है। जो ऐसे काम करते हैं वसूल लेने वाले। लूका रसूल के इंजील इसका 19 बाब, लूका रसूल के इंजील का 19 बाब देखें, वहां पर सारे जानते हैं इस वाक़या को। ये ज़कई जो है उसके बारे में जिक्र है। वो वसूल लेने वाला था, बल्कि सरदार था। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, उसने यीशु मसीह को देख भी लिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में जाना है। और वो उसको अपने घर में ले गया। और जब वो अपने घर में ले गया तो उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो अमीर है, जो दौलतमंद है, वो खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। तो जब वो यीशु मसीह के घर में चले गए तो उसके वो बात उसके ज़हन में चकराई कि भी मैं तो अमीर हूँ, और फिर मैंने तो जो कुछ कमाया है बड़ा गलत तरीके से कमाया है, और अब क्या होगा। उसने यीशु मसीह के घर पहुँचते ही कहा 8वीं आयत से, अज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, आए खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का ना हक कुछ लिया, यानी ये फ्रॉड है जो उसने किया टैक्स लेने में, लोगों को टैक्स देने में उनके साथ मिलकर रिश्वत लेकर उनके टैक्स को कम कराया। हम देखते हैं कि उसके लिए उसने कहा कि मैंने जिन लोगों से ना हक लिया है, क्या करता हूँ, मैं उनको चौगुना अदा करता हूँ। ये वसूल लेने वाले बड़े गुनहगार लोग समझे जाते थे, क्योंकि ये लोग का चक्कर चलाते थे, लोगों से पैसे बटोरते थे और उनका टैक्स कम करवाते थे। और इसी तरह कोई काम सही नहीं होने देते थे, हर काम गलत तरीके से करते थे, खुद भी करते थे और लोगों से भी करवाते थे। तो इसलिए उनको लोग बड़े खताकार, बड़े गुनहगार लोग समझते थे। और अब क्या हुआ कि 50% तो उसने गरीबों को दे दिया, अपने सारे माल में से 50% उसने गरीबों को दे दिया। तो जो बाकी का 50% था, वो उसने जिन से उसने गलत तरीके से पैसे बटोरे थे, उनको 4 गुना देकर वो सारा वो निकाल कर। यीशु मसीह के बाद जितने जो दौलतमंद आदमी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने आसमान की बादशाही हासिल करना चाहता हूँ, निश्चय हमर उठता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा भाई ठीक है, अगर तू शामिल होना चाहता है तो जा अपना सारा कुछ बेचा, जो कुछ तेरे पास है सारा कुछ गरीबों को जाके दिया, और उसके बाद मेरे पास आ जाए, तुझे आसमान को प्राप्त हो जाना, तुझे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा इसके सिले में, इसके इवज तुझे बहुत सारी बरकतें मिलेंगी, तुझे रूहानी खजाना मिलेगा, सारा कुछ दिया और तुझे रूहानी खजाना मिलेगा। और इसने भी अब यही किया, सारा कुछ उसने निकाल दिया और यीशु मसीह के पीछे लग गया और उस पर ईमान लिया, तौबा की और उसके साथ साथ चल पड़ा। तो हम देखते हैं कि उस खजाने के एवज जो उसने लोगों को बांट दिया, उस खजाने के एवज को यीशु मसीह ने उसको बड़ी बरकत से, बहुत बड़े खजाने से माला माल कर। तो हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब लोग इसके पास आते हैं तो वो अपने वादों को फिर पूरा भी करता है, और खास तौर से अमीरों के लिए तो ये बात बड़ी मुश्किल थी।
यीशु मसीह ने कहा था कि अमीरों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना ही मुश्किल है। सुई के नाके में से ऊंट जो निकल सकता है, लेकिन अमीर आदमी खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकता। इतना मुश्किल है। क्यों इतना मुश्किल है? कि वो अपने पैसे को प्यार करते हैं। वो अपने उनका खुदा जो उनका पैसा है जो उनके पास है, उनकी दौलत जो उनके पास है, वो उनका खुदा है। उनका ख्याल हर वक्त पैसे के बीच में लगा रहता है। आज मेरे पास 8 लाख है, सुबह मैं बिजनेस पे जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आऊँगा तो 1.5 लाख वहाँ से भी आ जाएगा, तो फिर 9.5 लाख हो जाएंगे। उसके बाद फिर रात में जगह सौदा हो रहा है एक प्लाट खरीदने का, तो वहाँ से आएंगे पैसे, तो ये 12 लाख हो जाएगा। उसके बाद और भी कोई ऐसा चक्कर चलाऊँगा जिससे और मेरे पैसे बढ़े। तो उस अमीर आदमी का हर वक्त जो सोच जो है वो अपने पैसों के पीछे ही पड़ी रहती है। कैसे इसको बढ़ाए, कैसे इसको ज्यादा करें। उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो खुदा को वक्त दे, खुदा के करीब बैठे, खुदा की कुर्बत में आए, खुदा के कलाम की तवज्जो दे। क्योंकि वो खुदा के पास आ जाए तो फिर वो नजायज तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे उसने और बहुत सारा माल हासिल करना है। तो फिर कई दफा खुदा ने तो वादा किया भी मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, फिर कहो तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो खुदा तो हमें देगा। लेकिन यकूब के खत में देखे लिखा हुआ है, हम जरा फिर पढ़े यकूब का खत, उसका 4था बाब, यकूब का खत उसका 4था बाब, तो वहां पर दूसरी आयत से बल्कि तीसरी आयत से शुरू करेंगे। ठीक है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि आगे क्या लिखा है, बुरी नीयत से मांगते हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश-ओ-इशरत पर खर्च करो। देखते हैं कि खुदा भी जब उससे काम में दरख्वास्त करते हैं क्या खुदा तो हमारी खिलाफ चीज को खिलाफ को पूरा कर दे, तो खुदा ऐसे ही नहीं है कि इधर से हमने दुआ मांगी तो खुदा ने इसको पूरा कर दिया। खुदा पहले में चेक करता है, खुदा ने देखता है इसका दिल कैसा है, साफ भी है नहीं कि नहीं, इसकी नीयत कैसी है, साफ भी है कि नहीं, मेरे हुक्मों को मानता भी है कि नहीं, ये मेरे साथ चलता भी है कि नहीं, ये मेरी इबादत करता है या नहीं, ये मेरे हुजूर दुआ में गिरता है या नहीं, ये जो कुछ इसके पास है इसके साथ दूसरों को शेयर करता है या नहीं, ये गरीब का ख्याल रखता है या नहीं। खुदा बड़ी चीजें देखता है। खुदा बहुत सारे एंगल के साथ हमारा जायजा लेता है। अब फिर अगर हमारी मांग जो है वो उसके हुजूर दुरुस्त निकलती है कि वाकई ये जरूरतमंद है, वो हमारी दुआ सुनता है। लेकिन अगर हम अपनी ऐश-ओ-इशरत के लिए मांगे, अगर हम बेफजूलियों के लिए मांगे, अगर हम दिखावे के लिए मांगे, अगर सिर्फ अपना हम नाम बड़ा करने के लिए मांगे, या हम दूसरा का मुकाबला करने के लिए मांगे, तो फिर खुदा मैं जानता हूं ये चीज के हकदार नहीं है। वो खुदा पहले ही जानता है, बल्कि वो तो हमारे मांगने से पहले जानता है किन किन चीजों की जरूरत है और वो उनको पूरा करता रहता है। तब जरूरत है ये देखने की
کہ ہم کیسے مانگیں، ہم کیسے مانگیں. ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں اے خدا ہمیں روز کی روٹی، کیا کہتے ہیں، اے خدا ہمیں روز کی روٹی دے. ٹھیک ہے، ہم اس دعا میں اس حصہ کو جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اس حصہ کو لکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں کبھی سوچا نہیں کہ ہم خدا سے صرف روز کی روٹی مانگ لیں. یا خدا تو ہمیں اتنا دے کہ ہماری روز کی روٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے، ہماری روز کی روٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے. لیکن ہم دعا مانگنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہہ دیا نا بس بہت ہے، خدا ہمیں سب کچھ مہیا کر دے گا. خدا ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارا ایک اور طریقے سے خیال رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم جو مانگیں اس کا طریقہ اس کے حضور درست ہونا چاہیے. سلیمان یہی انسان کی کتاب میں دیکھیے کتنا عقلمند آدمی تھا، کتنا وہ مانا تانا آدمی تھا، خدا ان کے حضوری میں بھی مقبول تھا، اور اس نے یہ 1000 تمثیلیں لکھی ہیں جو ہمارے کلام میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اپنے فائد کی کتاب اس نے اور بھی کچھ لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ ہے وہ صرف وائز اور امثال میں ہے. تو دیکھتے ہیں وہاں پر 30 باب، امثال 30 باب اور اس کی 8 آیت. اس کا آگے والا حصہ لکھا ہے، مجھ کو نہ کنگال ہونے دے اور نہ مجھے دولت مند کر. نہ مجھ کو کنگال کر اور نہ مجھ کو دولت مند کر. یہ ہے وہ بات جو ہم دعائے ربانی میں اس سے مانگتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے ہمیں وہی دے. روز کی روٹی میں دیتا رہے، ہم کچھ رہیں گے. اور آگے بھی لکھا ہے وہی بات جو وہاں پر دعائے ربانی میں ہے، ایسا نہ ہو بلکہ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے. میری ضرورت کے مطابق مجھے ضرورت دے، جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا مجھے دے. نہ مجھے کنگال ہونے دے اور نہ مجھے دولت مند کر دے. جب میں کنگال ہوں گا، غریب ہوں گا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی اپنی روز کی روٹی پوری کرنی. لیکن اگر وہ روز کی روٹی میں دیتا جا رہا ہے تو ہم اتنا اس کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے روز کی روٹی دی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں دعائے ربانی میں اس جملے کو پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. کیا واقعی خدا سے اتنا ہی مانگ رہے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے؟ جتنی ہماری ضرورت ہے خدا ان کو اتنی پوری کر. کہہ رہا ہے کہ میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے، جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا مجھے دیتا رہا. میں خوش، میں اتنے میں خوش ہوں، میں تیرا شکر گزار ہوں تیرے رحم کے لیے، تیرے فضل کے لیے کہ تو مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا. کیا نہیں رہنے دیتا؟ بھوکا نہیں رہنے دیتا. زبور کی کتاب میں داؤد لکھتا ہے کہ شیر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے نہیں رہ سکتے. تو خدا اپنے وعدہ کو پورا کرتا ہے ہمارے لیے کہ ہم بھوکے نہیں سوتے بلکہ ہم روز کی روٹی کھا کر سوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، ہمارے لیے خدا کی طرف سے یہ اس کی رحمت اتنی ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کا فضل اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے
پولس رسول غلطیوں کے خط میں اپنے بارے میں ذکر کرتا ہے. اس نے بلکہ خدا سے کہا، بار بار کہا، اے خدا میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، مجھے ٹھیک کر. شاید کمزور تھی یا کچھ اور مسئلہ تھا. بار بار جب اس نے خدا کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو خدا سے کہتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں، پولس آئندہ مجھے میرے سامنے یہ بات پیش نہ کرنا، میرا فضل ہی بس تیرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ آگے بات کر. خدا کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، جتنا دیا ہے، ہم اس کے لیے اس کے ضرور شکر گزاری پیش کریں، اس کے رحم کے لیے، اس کے فضل کے لیے، کیونکہ جتنے میں وہ ہمیں رکھتا ہے اس کو پتہ ہے، اور وہ ہمیں اس میں کبھی بھی نہیں ہونے دیتا. اور پھر سلیمان نے کہا ہے کہ نہ مجھے کمزور ہونے دے اور نہ مجھے زیادہ دولت مند کر. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے دولت مند بھی نہ ہونے دے. سلیمان کو تو خدا نے اتنی دولت دی، اتنا کچھ اس کے پاس تھا. جب داؤد مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا، بھائی میں آپ کو سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب میں اپنے رستے سے جا رہا ہوں. خدا اس پر ظاہر ہوا، سلیمان پر جوان تھا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں. دوسرا تواریخ اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت. اس نے کہا کہ اے خدا مجھے تو عقل، دنائی اور سمجھ دے دے تاکہ اتنی بڑی قوم جو ہے بنی اسرائیل، میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں، انصاف کی باتیں کر سکوں، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کر سکوں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دوں، اور نہ کروں اور نہ کسی کو کرنے دوں. اس لیے خدا نے کہا، بیٹا تجھے میں نے حکمت، دنائی اور عقل بھی دی، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی میں نے تجھے دی، بہت کچھ تیرے لیے. دوسرا تواریخ اس کا پہلا باب اس میں کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو بڑی برکتوں سے مالا مال کر دیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے باپ، اے خدا تو مجھے دولت مند نہ ہونے دے زیادہ. وہ خدا نے تو اس کو پہلے ہی دولت مند کیا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں اس نے یہ تو کہا تھا کہ مجھے دولت مند نہ ہونے دے، لیکن خدا نے اس کو اتنی دولت دی کہ وہی اس کے لیے مشکل کا باعث بن گئی. اس نے اپنے اس پکار کی وجہ سے، اپنے اس سرفرازی کی وجہ سے، اس نے اس دولت کی وجہ سے اس نے غیر قوم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ شادیاں شروع کر. سب سے پہلے تو اس نے فرعون کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کی اور اس کو اپنے کر لیا. پھر دوسری غیر قومیں جتنی تھی سب غیر قوموں میں سے ایک ایک عورت اس نے اپنی بیوی بنا لی، اور بہت سے نیروں بھی آگے ان ساری عورتوں کو جو وہ غیر قوم میں سے لے کے آیا تھا، ان کو ان کے محل بنوا دیے، ان کے دربار بنوا دیے، ان کے بت بنوا دیے گھر میں. وہ خود بھی پوجا کرتی تھی اور سلیمان کو بھی گھیر کر لے کے آتی تھی، آج ہمارے ساتھ جو پوجا. اور وہ اپنی عمر کے آخری سے میں ایسی مشکل میں پڑ گیا کہ وہ ان لوگوں کے، ان عورتوں کے بتوں کو پوجا کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس سے کوئی خوش نہیں ہوا. پہلے تو خدا اس کے وعدہ کیا تھا، میں تجھے بڑی برکت دوں گا، بڑا کچھ کروں گا. لیکن جب اس نے یہ کام کیا اس دولت کی وجہ سے، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ اے خدا مجھے دولت مند نہ ہونے دینا، لیکن اتنی دولت اس کو ملی. اس نے تو خدا نے اس کو عزت بھی دی، حکمت بھی دی، دنائی بھی دی، اس کو عقل بھی دی. لیکن جو یہ کام، یہ چیز اس کو برکت میں ملی،
वो उसके लिए मुश्किल का बायस बन गई। आज हमारे लिए भी, हम जो मसीही हैं, हमारे लिए यही चीज़ हमारे लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। इसलिए हम भी खुदा से यही दुआ करें, खुदा हमें इतना ही दे जो रोज़ की जो हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और इतना दौलतमंद ना कर कि हम तुझे भूल जाएं। और दौलतमंद लोग जो हैं वो खुदा को इसीलिए नहीं प्यार करते कि उनका प्यार अपनी दौलत के साथ होता है, और वो खुदा को पसे पुश डाल देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। आइए हम कुछ और चीज़ें ताकि कलाम में से इस दौलत के बारे में देखें। वाइज की किताब, वाइज ज़बूर के बाद इमसाल, इमसाल के बाद वाइज, वाइज की किताब इसका 5 बाब, वाइज की किताब का 5 बाब और इसकी हम पढ़ेंगे 10 आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है, लिखे ज़र दोस्त रुपये से आसूदा ना होगा, दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। जो दौलतमंद है और मिल दे, और मिल दे, और मिल दे, वो कभी आसूदा नहीं होता, उसका दिल भरता नहीं। चाहता है तो मुझे इतना ज़्यादा हो जाए मेरे पास कि मैं उसको कंट्रोल ही ना कर सकूं। ये नहीं पता कि वो खुद अपने कंट्रोल से बाहर करता है। वो खुदा उनके दूरी में खुद अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है जब वो ज़्यादा दौलत उसको मिल जाती है। क्या कौन आदमी जो दौलत का चाहने वाला, जिसका प्यार सिर्फ दौलत से है, वो उतना बढ़ भी जाएगा लेकिन उसका दिल नहीं भरेगा, वो शेर नहीं होगा, बल्कि उसकी हवस जो है, उसकी ख्वाहिश जो है वो बढ़ती रहेगी कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। और एक दिन आएगा तो वो खुद उसके बीच में गुम हो जाएगा। ये वायद की किताब साहिब में जो हमारे लिए बात बताई है और वो यही है। और फिर इसी तरह इसी आयत में ये दूसरा हिस्सा जो है कि हम इस रुपये पैसे से आसूदा नहीं हो सकते। हमारी काहे जब वो बढ़ती नहीं है, वो फिर भी खाली रहती है। जितना भी मिल जाए हम चाहते हैं इससे फिर और ज्यादा मिल जाए। ये खत्म नहीं होती हमारी ख्वाहिश, ये ख्वाहिश हमारी मिटती नहीं है। तो चाहता है कि हमारे जो दौलत वाले जो हैं, जिनके पास दौलत भी है, लेकिन जब उनके पास बहुत कुछ आ जाता है तो वो कहते हैं नहीं और चाहिए, हमें और चाहिए। तो उससे भरते ही नहीं है, उनकी ख्वाहिश खत्म ही नहीं होती, वो मिटती नहीं है और वो उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये दौलत हमारे लिए और क्या करती है। यही 5 बाब वाइज की किताब 5 बाब उसकी 12 है। जरा देखें, आजकल भी बहुत सारे लोग इस मुसीबत में पड़ जाते हैं। 12 में लिखा है जो मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा बहुत, लेकिन दौलतमंद की परवानी कुरान में लिखा है कि दौलतमंद को क्या नहीं करने देती, सोने नहीं देती, उसकी नींद खत्म हो जाती है। क्योंकि उसका ख्याल हर वक्त अपनी दौलत के पीछे होता है, उसको नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? भाई ये जो मेरे पैसे हैं ना तिजोरी में, कोई आके मुझसे छीन के ही ना ले जाए, मुझे बर्बाद ही ना कर दे,
कि वो सोचता ही नहीं उस पैसे की हिफाजत के लिए। लेकिन जो खुदा के हुजूर मेहनत करने वाला है, जो उसकी बरकतों पर खुश होने वाला है, जो उसकी नेमतों बरकतों पर कनायत करने वाला है, लेकिन वो आराम से मीठी नींद सोता है, बेफिक्र होकर। उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। अगर फिक्र है तो खुदा को उसकी फिक्र है कि ये मेरा बंदा है, मैं इसको अच्छी और मीठी नींद दूँ। तो देखते हैं कि दौलतमंद को नींद ही नहीं आती, वो दौलत उसको सोने नहीं देती, उसका हर वक्त ख्याल 24 घंटे उसका ख्याल उस दौलत के ऊपर ही होता है। और जितने पैसे खर्च हो गए हैं, कुछ मेरी दौलत कम हो गई है, अब मैं कल कुछ ऐसा इंतज़ाम करूं कि मैं इसको दोबारा उस पहले लेवल पर ले आऊं, बराबर कर लूँ। फिर देखता है कि और किसी तरीके से नुकसान हो गया, कुछ दौलत निकल गई, फिर उसको फिक्र पड़ जाती है कि नहीं मैंने इसको पूरा करना है, और फिर वो किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से नाजायज़ तरीके से अपनी दौलत को फिर पूरा कर लेता है। तो इस चक्कर में ही रहता है इस वक्त, हर वक्त, क्योंकि उसको पैसे की फिक्र होती है, नींद की फिक्र नहीं होती, उसको नींद आती ही नहीं। उसका ध्यान, उसकी तवज्जो नींद उस पैसे के पीछे ही होता है। हो सकता है उसको नींद आ भी जाए, उसको दौलत में ख्वाब आते रहते होंगे, ये भी मुमकिन है। जो सोते हुए भी वो दौलत के ख्वाब देख रहा होगा। हम क्यों ऐसी चीज के पीछे पड़े जिससे हमारी नींद खराब हो जाए, जिससे हमारी सेहत खराब हो जाए, जिससे हमारी रूहानी मियार जो है हमारा खराब हो जाए। कहता है कि हम ऐसी जिंदगी खुदा के ज़रूरत करें जो खुदा के नज़ीर मकबूल, उसको पसंद आए, उसके साथ चले, और जो ऐसा करते हैं वो बरकत पाते हैं। उसके बाद यही वाइस 5 बाब उसकी आयत 13 तो लिखा है, ये एक बलाए अजीम है। और क्या चीज है? दौलत। ये एक बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख जोड़ता है। दौलत जो है इंसान को डस जाती है, नुकसान पहुंचाती है, उसको बर्बाद कर देती है, उसको हलाक कर देती है। और कई दफा जब अचानक कोई ऐसा हो जाए, वो सारी दौलत उसके हाथ से निकल जाए, उसके हाथ से निकल जाए तो वो एक किस्म से उसको हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि वो ये कबूल नहीं कर सकता कि हाय मेरा पैसा कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूँ। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अजीजों, ये माल दौलत का पैसा जो है हमारी ज़िंदगी में, ये क्या है कि अमीर लोग जो हैं वो अपने नुकसान के लिए रख जोड़ते हैं, अपनी जानी नुकसान, अपना माली नुकसान और दूसरे बहुत सारे नुकसान। लोगों की भी नज़र उसके पैसे पर होती है, जो चोर है, जो डाकू हैं, जो छीन लेने वाले हैं। हाँ, इसके पास इतने पैसे हैं, आज कोई ऐसा तरीका बताए कि हम ये सारी दौलत समेट करके पास दिया, और वो अपनी बात में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही उनको मौका लगता है वो दौलत छीन लेने के काबिल हो जाते हैं। तो उसका माली नुकसान भी हो गया,
تو لکھا ہے کہ دولت مند اپنی دولت کو اپنے ہی نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی چیز کے پیچھے پڑنے کی کہ جس سے ہمارا اپنا نقصان نہیں کرتا. چاہتا ہے کہ ہم اتنی چیز ہمارے پاس ہو جو ہمارے لیے برکت کا باعث بنے اور ہمارے سے کوئی چھین بھی نہ لے, ہمارے لیے وہ نقصان کا باعث نہ بنے. اور یہ لوگ خدا کا کلام اتنی اچھی باتیں میں بتاتا ہے کہ اس دولت سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے, اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہم دولت حاصل کرنے کی فکر میں کبھی نہ. خدا ہمیں برکتیں دے گا اگر ہم نیک نیتی سے خدا کے حضور چلیں گے, اگر اس کے حکموں کو مانیں گے, اگر ہم اس کے تابعدار رہیں گے, اگر ہم اس کے فرمانبردار رہیں گے, اگر ہم اس کے وفادار رہیں گے. تو میں اتنی برکتیں دیتا ہے. ابھی ہم نے سائنسی صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں اتنی برکتوں سے معمور کر دے گا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو پھر کیا ضرورت ہے غلط طریقہ استعمال کرنے کی جس کے وسیلے سے ہم اپنا ہی نقصان کریں, اپنی نیند خراب کر دیں, اپنا سب کچھ کھو دیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہم دوسروں کے لیے اپنے لیے نقصان کا باعث بنیں. ہم دیکھیں گے پہلا تموتھیوس کا 6واں باب اور اس کی 9ویں آیت. پہلا تموتھیوس کا 6واں باب اور اس کی آیت 9 لکھا ہے, لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سے بےہودہ نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی تباہی آپ اپنی کرو, وہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں, وہ آپ اپنے آپ کو اس ڈوبنے والے حصے میں لے جاتے ہیں, کیونکہ یہ دولت مند ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ ہمارا نقصان کرتی ہے. یہ دولت جو ہے ہمارا نقصان کرتی ہے. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم نجائز طور پر زیادہ سے زیادہ دولت مند ہونے کے چکر میں پڑے رہے ہیں. لکھا ہے, صاف لکھا ہے, بلکہ اس سے پہلے لکھا ہے, بس اگر ہمارے پاس کھانے اور پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں, اسی سے خوش رہیں, اسی پر خدا کا شکر ادا کریں. جے خدا تو نے آج ہمیں روٹی دی ہے, آج تو نے ہمیں سنبھالا ہے, آج تو نے بڑی برکت دی ہے, تیرا شکر ادا کر. آج تو نے ہمیں اپنی زندگی میں رکھا ہے, آج تو نے ہماری دعا کو سنا ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اس چکر میں نہ پڑے جس سے دولت مند ہو کر ہمارے لیے بڑی سے بڑی ہلاکت جو ہے وہ ہمارے اوپر آ سکتی ہے. نے کہا ہے کہ جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایک بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں, اور یہ آزمائش شیطان کی طرف سے, یہ آزمائش شیطان کی طرف سے ہمارے بیچ میں لائی جاتی ہے کہ جو ہمیں پھنسا لیتا ہے اور ہمیں بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنسا دیتا ہے, اور جو آدمی کو لکھا ہے کہ ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتا. ایک دفعہ اس کے بیچ میں پھنس گئے پھر ہم بچ نہیں سکتے, پھر آخری انجام ڈوب جانا ہے, غرق ہو جانا ہے, پانی کے اندر گہرائی تک پہنچ جانا ہے, زندگی ختم. اس کے بعد کوئی سانس نہیں, اس کے بعد کوئی امنگ نہیں, اس کے بعد کوئی امید نہیں, جبکہ ہم اپنے آپ کو اس غلط طریقوں سے اس کے پاس لے کے جائیں.
اور آگے لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر دیا ہے۔ زر کی دوستی یعنی کہ پیسے کی دوستی، دولت کی دوستی، اس سے بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو چھلنی کر دیا ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا ہے، خود اپنے آپ پر چھریاں مروا رہے ہیں، اس کے تیر چلوا رہے ہیں، خود اپنے آپ کے اوپر شیطان کے واروں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس سے پہلے دیکھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اتنے میں خوش رہو، اتنے میں خدا کا شکر ادا کرو، اسی پر قناعت کرو، اس سے زیادہ نہ مانگو۔ تمہاری روز کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، شکر کرو، آرام کی نیند سے اپنی نیند کو بھی بڑھاؤ۔ جتنا اس کے ساتھ چلیں گے، جتنا اس کے ساتھ رہیں گے، جتنا اس کا قریب رہیں گے، خدا بھی خوش ہوگا۔ جتنا اس کے ہم دعا میں شکر گزاری کریں گے، خدا خوش ہوگا کہ یہ میرے وفادار لوگ ہیں۔ اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں وائز کی کتاب 5:17 میں، دوبارہ وائز کی کتاب میں چلے، اتنی اچھی باتیں ہمیں وہاں سے پتہ چلتی ہیں جو آج ہمارے اس کلام میں ہمیں مل رہی ہیں۔ وائز 5:17 لکھا ہے، وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، جو دولت مند ہے، لکھا ہے وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اس کی دکداری اور بیداری اور خفگی کی انتہا ہی نہیں۔ اس کا وہ بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے ایک مشکل کا موقع ہوتا ہے، کیا کہ وہ بے چینی میں کھاتا ہے، اس کو چین نہیں ہے، اس میں اس کو آرام نہیں ہے، اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا تو لیا اس نے، لیکن جو خوشی، جو برکت وہ ہر وقت بیداری کی حالت میں رہتا ہے، وہ ہر وقت دکداری یعنی دکھنے کی حالت میں رہتا ہے، اور خفگی میں رہتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان جو ہے، اس کو کوئی سکون نہیں ہے، اس میں غصہ اور خفگی ہے، اس میں قہر ہے۔ کیوں یہ سمجھانی باتیں اس میں ہیں؟ شاید ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ شیطان اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اگر اس کے اتنا کچھ مانگا ہے، اس کو دیا بھی ہے، تو یہ چیز اس کے سکون کو اڑا دے، ختم کر دے، اس کو سکون نہ ملے۔ شیطان کو خود بھی کوئی سکون نہیں ہے، اسے خود بھی ہر وقت دکداری ہے، اس کو ہر وقت اپنی بھی بیزاری ہے۔ وہ چاہتے ہیں جب میں نے اس بات کو قبول کیا ہے تو جو میرے ساتھی ہیں یہ بھی میرے ساتھ کیوں نہ میری طرح رہو، یہ بھی اسی طرح کے بات۔ یہ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان آ گیا یسوع مسیح کے پاس، یسوع مسیح کو لالچ دیا، یسوع یہ دیکھ ساری شان شوکت دنیا کی ساری چیزیں ایک دفعہ میرے سامنے جھک کے سیدھا کر دے، میں تجھے دے دوں گا۔ وہ اصل میں یسوع مسیح کو دولت مند بنانا چاہتا ہے، اس کو دنیا کی دولت دینا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اس کو بدل کہ ہم نے تو تجھے سب کچھ دیا ہے، اب تو ہمیں دینے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے سیدھا کرو۔ یسوع
यीशु ने कहा कि सिर्फ हमने झुकना है तो अपने बाप के सामने झुकना है, अपने खुदा के सामने झुकना है। बाकी भी जितने लोग हैं वो झुके तो खुदा के सामने झुके तो उनको बरकत मिलेगी। जब यीशु मसीह दुनिया पर आए, आसमान पर उसका बहुत बड़ा इख्तियार था, वो उसके जलाल में था, वहां पर वो उसके साथ तख्त पर बैठा रहता था, फरिश्ते उस वक्त हर वक्त उसके आगे झुके रहते थे, दुनिया की सारी चीजें उसके सामने मौजूद थी क्योंकि वो सब चीजों पर उसका इख्तियार था। लेकिन जब वो दुनिया पर आया, यीशु मसीह जब दुनिया पर आया, क्या वो इस दौलत को साथ लेकर आया, उस इख्तियार को साथ लेकर आया, कुछ सारी भक्तों को साथ में साथ लेकर आया? नहीं, वो तो एक मामूली आदमी बनकर इस दुनिया पर आया। उसको तो एक घर भी नहीं मिला जहां पर उसकी पैदाइश हुई, एक अस्तबल में उसकी पैदाइश हुई। उसकी पैदाइश किसी महल में नहीं हुई। वो मजूसी जो यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे, उनका ख्याल था कि ये जो बड़ा बादशाह पैदा हुआ है ये किसी महल में होगा, इसलिए आके उन्होंने महल में पूछना शुरू कर दिया तो वो यीशु किधर है जिसका सितारा हम देख कर आए। यहाँ तो कोई यीशु मसीह नहीं है। हाँ, जब तुम्हें मिले तो आके हमें बताना तो हम भी इसमें विदा करेंगे। वो कहाँ पे था? उस अस्तबल में जहाँ पर उन्होंने जाकर उसको सिजदा किया और अपने तहैत उसको सामने पेश किया। यीशु मसीह दुनिया पर अपने साथ ना कोई दौलत लेके आए, ना कोई और बड़ी चीज लेकर आए। क्या बन के आए? गरीब बनकर आए। और इसका हवाला हमने कई दफा पहले भी पढ़ा है, दूसरा ग्रंथियों का खत, इसका 8 बाब और इसकी 9 आयत। आज फिर हम इस सवाल को पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथियों का खत, इसका 8 बाब और उसकी 9 आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो, अगरचे वो दौलतमंद था, आसमान पर जब था तो वो क्या था? दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातर गरीब बन गया, मेरी और आपकी खातर वो गरीब बन गया। यीशु मसीह ने गुर्बत को पसंद किया, गरीब बनना पसंद किया। क्यों? आगे उसका जवाब लिखा हुआ है कि वो गरीब हमारे लिए क्यों बना? ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से क्या हो जाओ? दौलतमंद हो जाओ। वो हमें रूहानी दौलत से हमें भरना चाहता था, इसलिए वो गरीब बनकर किसके पास आया? बड़े बड़े लोगों के पास नहीं। लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि मैं गरीबों के लिए इस दुनिया पर आया हूं, उनको बचाने के लिए आया हूँ। जब यीशु मसीह कलाम सुनाते थे और उसके बाद फारूक होते थे तो वो बैठ जाते थे, तो कई दफा फकीर, फरीसी और गरीब लोग और खास से मसूल लेने वाले इसके साथ बैठ जाते थे। तो लोग इतराज करते थे, ये कैसा यीशु है, ये कैसा खुदा का नबी है कि ये गुनहगारों के साथ बैठता, उनके साथ खाता पीता है। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि मैं आया ही नहीं लोगों पे, मैं गुनहगारों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं गरीबों को बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम अपने आप को रास्तबाज समझते हो तो मेरी तुम्हें गरीब कोई जरूरत नहीं। जो तंदुरुस्त है उसको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम अपने आप को तंदुरुस्त समझते हो, तुमको मेरे पास आए। मैं तो वो तबीब हूँ, वो डॉक्टर हूँ जो लोगों के गुनाहों को, जिस्मानी गुनाहों को भी और रूहानी गुनाहों को भी माफ करने के लिए आया हूँ। मैं वो तबीब, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, खुदावंदों का खुदावंद।
अजीजों, वो हमारे लिए इस दुनिया पर गरीबों के लिए आया और गरीब बनकर आया ताकि अपनी गरीबी में हमें अपने साथ शामिल कर ले और इस गरीबी में हमें रूहानी दौलत से मामूर कर दे। क्या बड़ी बात है जो हमारे लिए वो करने के लिए दुनिया का आया। तो हम मसीहों की ज़िंदगी जो है, हमें हमारी ज़िंदगी भी मसीह जैसी होनी चाहिए कि अगर कि वो दौलतमंद था लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने गरीबी को पसंद किया। आज वो कहता है कि हम भी अपने आप को दौलतमंद होने की तरफ ना भागें, ना कोशिश करें कि हमें दुनिया की चीज़ें मिल जाएं, बल्कि जिसने खुदा को पा लिया है, जिसने मसीह को पा लिया है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने इसको सब कुछ दे दिया। जब हम उसको कबूल कर लेते हैं तो हमें वो दौलत देता है जो हमसे छीनी नहीं जाएगी, हमसे छीन नहीं सकती। हम देखेंगे मत्ती सूरत के दीन का 7वां बाब, मत्ती सूरत के इंजील का 7वां बाब 6वां बाब और उसकी 19 आयत। मत्ती 6वां बाब और उसकी 19 आयत लिखे है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग लगता है, ना वहां चोर नकब लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अमीर आदमियों को क्यों नहीं सुकून मिलता? इसलिए कि जहां उनका माल है उनका दिल अपने माल की तरफ ही रहता है, वो खुदा को भूल जाते हैं और हर वक्त अपने इस माल की तरफ। और उसको फिक्र क्या होती है, नींद की नहीं आती, ये कोई मेरा माल चोरी ना कर ले, ये मुझसे कोई छीन ना ले, ये मेरे से कोई जबरदस्ती ना ले जाए। और उनको हर वक्त अपने माल की फिक्र होती है, उनको खुदा की फिक्र नहीं। तो खुदा चाहता है कि हमने जो दौलत उसने हमें दी है, जो खजाना उसने हमें देना है, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसको ना कोई चुरा सकता है, क्योंकि वो खजाना हमारे पास दुनिया में नहीं जमा था, बल्कि वो खजाना हमारा आसमान पर जमा हो रहा है। वहां पर ना कोई उसको चुरा सकता है, ना कोई उससे हमें छीन सकता है, ना कोई उस पर नकब्ज़ नहीं कर सकता है। बल्कि वो कहता है कि अगर तेरी आंख दुरुस्त हो तो सारा बदन रोशन हो जाता है। कहने के हमारी आंख जिससे देखकर हमने फैसला करना है, इस आंख से हम देखकर कोई फैसला करते हैं, ये चीज़ दुरुस्त है या गलत है। इस आंख से हम कलाम पढ़ के फैसला करते हैं कि ये बात हमें गलत बता रहा है कलाम, या गलत सही, या सही बता रहा है या गलत बता रहा है। इस खुदा ने में अकल दी है, इस कलाम को पढ़कर हम अपने ज़हन से फैसला करते हैं कि हमने इस चीज़ को कबूल करना है या नहीं करना। आँख जो है हमारे लिए रोशनी का बहुत बनती है, हमें ये नूर दिखाती है, हमें ये कलाम दिखाती है, हमें इसको समझ दिलाती है कि हमने इसको लागू करना है। 119 ज़बूर और 105 आयत में क्या लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। हम इन आँखों से, रूहानी आँखों से इस कलाम को इस पर पढ़ें, इसको गौर करें कि उसने इतनी अच्छी बात हमें खुदा के कलाम में बता दी है कि आए बंदे, अगर तूने बचना है तो ये कलाम तेरे पास है, इसको पढ़, इसको सुन, इस पर अमल कर, ये तुझे वो रास्ता दिखा जिस पर तुझे जाना।
दौलत की फिक्र ना कर, खजाने जमा करने की फिक्र ना कर, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि मुसीबत ही मुसीबत और मुश्किल ही मुश्किल, बल्कि हलाकत है। लेकिन अगर तुम उसके साथ चलना है तो फिर उसकी मर्जी को पूरा कर और अपने यार। यीशु मसीह जब ये बात लोगों को बता रहे थे तो उनके शागिर्दों को बड़ी फिक्र पड़ गई। यीशु के शागिर्दों को बड़ी फिक्र पड़ गई अपनी। अच्छा, दौलत का ये हाल है तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर कौन बच सकेगा, फिर कौन सा आदमी है जो बच सकेगा। तो हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, ये सब कुछ आदमी से तो नहीं हो सकता, लेकिन जब खुदा उसकी रहनुमाई करे, उसकी मदद करे, उसको समझने में उसका हौसला दे, उसको उसकी रहनुमाई करे, तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो पतरस कहने लगा, पतरस कहने लगा यीशु से, अरे यीशु, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं। अरे यीशु, हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? पतरस ने सवाल किया। पतरस ने सवाल किया कि हम तो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो ये इसका पता क्या जवाब दिया? जिसने अपना सब कुछ छोड़ा है उसको इस दुनिया में भी और आगे भी उसको बरकत मिलेगी, और उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना उसको बरकत मिलेगी। अंदाजा लगा सकते हैं? 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना बरकत मिलेगी। इतनी बरकत, इतनी बड़ी बरकत कि 100 गुना बरकत मिलेगी। ओके, हम देखते हैं कि पतरस ने खुदा की यीशु ने आवाज लगाई, तो यीशु ने कहा, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको अब आदमगीर बनाऊंगा, आदमियों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, आदमी को मेरे पीछे लगाने वाले बनाऊंगा। और ऐसे ही हुआ, खुदा ने पतरस को इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने पतरस को इस्तेमाल किया, और उसका एक कलाम सुनाने से 3000 यहूदियों ने फौरी तौर से मसीह को कबूल किया। उसने आदमगीर बन गया, वो आदमियों को पकड़ने वाला बन गया। और क्या है, उसके बाद कुछ देर के बाद उनकी तादाद 5000 हो गई। जिन यहूदियों ने मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, उन्होंने तौबा कर ली, मसीह को कबूल कर लिया, उन्हीं से इब्तिदाई कलीसिया बन गई। तो हम देखते हैं कि ये है वो बरकतें जो 100 गुना बरकतें मिल रही हैं। इतनी बरकतें कि हम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। और जिसको खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियाँ जो हैं उसके लाभ को इस्तेमाल करें। लूका 12 बाब और उसकी 15 में देखेंगे, लूका 12 बाब और उसकी 15 में देखिए, वहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी बात वहाँ पर दर्ज है। लूका 12 बाब और उसकी 15 है। वहां पर लिखा है, और उसने उनसे कहा कि खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं है। हर तरह से अपने आप को लालच से बचाए रखो, इस दौलत के पीछे मत भागो
इस माल दौलत के पीछे मत भागो, दौलतमंद होने का मत ख्याल करो, बल्कि क्या करो, अपने आप को उस हमेशा की जिंदगी के पीछे डालो, क्योंकि ये दुनिया की दौलत जो है इससे तुम्हें जिंदगी नहीं मिलनी। ये जिंदगी तुम्हें नहीं दे सकती, मौकूफ है, खत्म है। लेकिन उसकी जिंदगी उसके कसरत माल पर मौकूफ नहीं। किसी की भी दौलत उसको फायदा नहीं पहुंचा सकती, उसको जिंदगी नहीं दिला सकती। अगर जिंदगी दिला सकती है तो खुदा के हुक्म की ताबेदारी, खुदा की वफादारी, खुदा के हुक्म को मानना, उसके साथ चलना, उसको कबूल करना हमारे लिए बरकत का बात है। तो खुदा चाहता है कि हम इस दौलत के पीछे इसके लालच में ना पड़े, और अगर इसके लालच में जाएंगे तो ये हमको फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो हम अपनी मसीही जिंदगियां जो हैं उसमें इस रुपए पैसे को, इस दौलत को बिल्कुल ना अपनी जिंदगी में घुसने दें। ये नहीं कि हमें खुदा बरकतें देता, वो हमें देगा, हमें बहुत कुछ देगा। खुदा हमें अपने घर भी देता है, खुदा हमें और भी बरकतें देता है, खुदा हमें इज्जत भी देता है, सरफराजी भी देता है, खुदा हमें गाड़ियां भी देता है, हर चीज। लेकिन जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसको उसके इजरार के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर वो हमारे लिए नुकसान देने हो सकते, बल्कि वो हमारे फायदा के लिए होंगी। वो हमें तरक्की का बायस बनाएंगी, वो हमें उसमें आगे बढ़ने का वसीला बनाएंगी, वो हमें उसमें मजबूत होने का वसीला बनेगी। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं हम अपनी जिंदगियों के मुहाफिज बने, मौके को ताड़ लें। शैतान हमारी जिंदगियों में घुसना चाहता है, हम उसको अपनी जिंदगी के नजदीक न आने दें। वो लालच देकर, फरेब देकर, धोखा देकर और बहुत सारी गलत बातों से हम अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम उसके निर्णय में ना, हम अपना ध्यान मुकम्मल तौर से खुदा की तरफ लगाए रखें, तो फिर शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर उसके हाथ में दे दें, तो ये हमारी जिंदगियां जो हैं उसके दरार की इस्तेमाल होगी। आखिरी आयत में पढ़ूंगा, लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 18वीं आयत। हम जो मसीही हैं खास तौर से हमारे लिए लिखा है कि हम दुनिया की चीज़ों में मत पड़ें, क्योंकि अगर पड़ेंगे तो फिर हमारे नुकसान होगा। हम शरीर के पीछे न जाएं, अगर उससे बचे रहेंगे तो फिर हम खुदा के नाम को इज्जत दिला देंगे। लिखा है 5 बाब, पहले यूहन्ना 5 बाब उसकी 18 आयत। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि वो उसकी हिफाजत करता है, यानी खुदा उसकी हिफाजत करता है जो खुदा से पैदा हुआ है, और शरीर उसे छूने नहीं पाता। शरीर की जरूरत नहीं कि वो खुदा के बंदे को हाथ लगा जाए। तो अजीजों, अपने आप को उसमें मजबूत करें, अपने आप को उसके साथ लेके चलें, उसके वफादार बनाएं, उसके ताबेदार बनाएं। शरीर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वो यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ सका, सिर्फ उसको मौत दिला सका, लेकिन वो मौत पर भी फतह पाकर उसके सारे प्लान को उसने खत्म कर दिया। आज वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, लेकिन अगर हम मसीह के साथ हैं तो हम भी शैतान के सारी मंसूबों को मरियम भेंट कर देंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने साथ रखे, अपने जलाल के इस्तेमाल करे। हम इस माल दौलत के इस चक्कर में, इसके लालच में ना पड़े, बस जो कुछ खुदा ने भी दिया है शुक्रगुजारी के साथ इसके जिंदगी बसर करें, तो ये हमारे लिए बरकत का बायस होगा। खुदा आपको भी बरकत दे।